मैं बोल दूंगी तो चल। थैंक यू वेरी मच सर। आवाज नहीं आ रही। थैंक यू वेरी मच सर। Now, a very warm welcome to our chief guest, Dr. Anil Gupta, sir. He is chairman of Computer Society of India, Indore chapter. I would like to call Anil Gupta, sir, to speak few words. Hello. Hello, am I audible? Yes, sir, you are. Yes, sir. Good morning to all. Very, very good morning to all. Good morning, sir. First of all, I want to congratulate to this complete robotics team for grand success events they have already conducted at regional level and national level and China and Europe. So a big congratulations to all. Now it is my pleasure to be a part of this webinar of emerging topic robotics. I can say that nowadays robots play a very vital role in almost every field, like education, research, and whatever we want. In every field, play a very important, vital role. Nowadays, in COVID-19 pandemic, robots play a role of doctors, even your attendant also. So we can say these robots nowadays it will play a very vital role in our daily life also. So let's start our new journey of this learning, new style of learning with this new paradigm of technologies. On behalf of CSI Indore chapter, I wish all participants in the organizing committee good luck for this webinar. I also want to thank the organizing committee and management of IPS Academy to invite me. Once again, thank you and good luck to all. Thank you. Thank you, Anil sir, for sharing your valuable thoughts, experience to all the participants. Good luck to all. Thank you. Thank you, sir. Now moving forward, I, Dharmesh Verma, Assistant Professor at School of Computers, IPS Academy, would like to thank you, Mr. Mudit Thakkar, for finding them for this webinar for his busy schedule. So he is the founder, CEO of Edu Square Training and Research Center and chairman of Answer Foundation, and also he is a mentor of Atal Tinkering Lab, Niti Aayog, Government of India. Now I will hand over session to Mr. Mudit Thakkar so that he can share all of his experience and knowledge to all the participants. Mudit sir. Thank you very much, Tarunesh ji, for such a brief introduction. Before starting my session, I just want to give thank you to the organizing team, particularly Manish ji and the whole team of School of Computer Science for inviting me for this session to address this 138 participants right now available on the topic of robotics. You had a very good video about what all the things that your department has done throughout in the field of robotics. But my today's topic is how a new aspirants, specifically who is coming out of their school journey and wanted to go for their college life. So what are the basic things that they can probably look at in terms of learning robotics, and what are the different type of resources that they can have, and what exactly is the field of robotics, and what are the different type of robots. So as we know, there are so many new technologies coming up day in day out, and one of the most prominent thing that is are there right now is in the field of robotics. So let me give you a brief thing about what exactly robotics is. I have made a small presentation after I had a word with Aftab ji.
regarding what all things that I want to discuss, so that I should not have to deviate from a point that I want to deliver. So let me share my screen. I'll also share the one of the video which I like so much, developed by some of the different company, but I'll also show you at the later point of stage. I also request all the participants who are live right now can ask their questions into the chat box, so that we can try to make this session as interactive as possible. Probably you can write down your comments as we go on with this session, and I'll try to take that comment or at the questions that you have at the later point of this session. So let me quickly jump into my PPT. So whether my PPT is visible to everybody? Can Tarunesh ji confirm my PPT is visible? Tarunesh ji? Yes, sir. Okay, Your okay, PPT is visible. Okay, great. So मैं एक काम करता हूँ, मैं इस सेशन को थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन में रखूंगा, जिससे आप लोग जो है इसको इजीली समझ पाएंगे। मैंने बहुत सारे लोग इसमें एनोटेशन मैंने बंद कर दिया है, प्लीज अपने एनोटेशन बंद करके रखिएगा, और आपके क्वेश्चंस एंड डाउट्स जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए। तो दिस सेशन इज ऑल अबाउट व्हाट एग्जैक्टली न्यू टेक्नोलॉजीज इज, और उसमें से मैं जो आज कवर करने वाला हूँ वो है रोबोटिक्स क्या होता है। सो रोबोटिक्स के बारे में हम लोग देखते हैं। इस फील्ड को जनरली आज की डेट में जो वर्ल्ड में ये पूरी एक फील्ड है, जिसको MIT जो वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, या हार्वर्ड की बात करें, या और भी जो भी बड़े इंस्टीट्यूट्स है अक्रॉस वर्ल्ड, इस फील्ड को जनरली जो इस फील्ड को कहते हैं स्टेम लर्निंग। स्टेम लर्निंग मतलब जिसको हम कहते हैं कि ऐसी स्टेम का मतलब अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो अगर मैं रोबोटिक्स टाइप की फील्ड की बात कर रहा हूँ तो ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें साइंस के कॉन्सेप्ट भी हैं, टेक्नोलॉजी के भी हैं, इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट भी हैं, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट भी हैं। सो दिस इज नॉट जस्ट अनदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जो कि कई सारे लोग सोचते हैं कि रोबोटिक्स एक फन एक्टिविटी है, बट दिस इज नाउ अ फुल टाइम एक्टिविटी और अ फुल टाइम लर्निंग दैट यू कैन हैव, एंड यू कैन गेट वन ऑफ द वेरी गुड जॉब अक्रॉस वर्ल्ड इफ यू गो थ्रू दिस टेक्नोलॉजी। So STEM learning जो है मैंने आपको बताया, this activity will let you explore the skills of future, which such as design, how to go about mindset, computational thinking, adaptive learning, artificial intelligence, and all sort of different stuff that you we are a robot क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। जनरली अगर ये 1-to-1 सेशन होता तो मैं आप लोगों से सबसे सामने पूछता, बट यहाँ पे हम टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आप लोग को मैं डायरेक्टली बताता हूँ कि रोबोटिक्स क्या होता है। रोबोटिक इंडस्ट्री एसोसिएशन की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि इट्स अ रीप्रोग्रामेबल मल्टीफंक्शनल मैनिपुलेटर डिजाइन टू मूव मटेरियल पार्ट or designed to move material part to device through variable program motion। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने आप को वो कर लें, म्यूट कर लें, ठीक है। सो स्पेशलाइज्ड डिवाइस थ्रू वेरिएबल प्रोग्राम मोशन फॉर अ वैरायटी ऑफ टास्क। अगर मैं एक रोबोट की बात करूं तो एक जगह से दूसरी जगह किसी एक मान लीजिए मुझे कोई चीज को ले जाना है, तो मैं एक ऐसा प्रोग्रामेबल सिस्टम बना सकता हूं जिसमें मूविंग पार्ट्स होंगे, चाहे हो सकता है वो एक्चुएटर्स हो, जिससे मैं किसी सामान को, पार्ट्स को, टूल्स को, स्पेशलाइज्ड डिवाइस को मैं प्रोग्राम करके भी उसको एक जगह से दूसरी जगह ले आ सकता हूं। और इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे मैकेनिकल आर्म हम इससे बना सकते हैं, सेंसर्स जो है वो हमारे आसपास के सिचुएशन को सेंस करने के लिए कैपेबल हो सकते हैं। हम प्रोग्रामिंग के थ्रू इसके अंदर इंटेलिजेंट डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि हमारे पास प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, तो हम जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक सेंसर है, तो उस सेंसर से मैंने डेटा लिया, मैंने एक प्रोग्राम लिखा और उस प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग मैंने एक आउटपुट जनरेट किया। तो ये पूरी की पूरी चीजें फिजिबल हो सकती है रोबोट के अंदर, है ना। कई सारे लोग मैसेज, जब ये मैं इसके बारे में बताता हूँ तो कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड अ रोबोट। सो मशीन जो है वो एक नॉर्मल कन्वेंशनल थिंग है, उसका एक स्पेशलाइज्ड वर्जन अगर मैं उस मशीन की बात करूं तो वो रोबोट होते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह किसी भी सामान में, अभी आपको थोड़ी देर बाद मल्टीपल टाइप के रोबोट्स के बारे में बताऊंगा।
सो अब आपको ये मैंने बताया तो व्हाट व्हाई रोबोटिक्स। अब अगर मैं इस चीज के बारे में समझ लिया, बट रोबोटिक्स क्या होता है या क्यों करना चाहिए, तो जनरली क्या होता है कि एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव, मैं अपने फादर की बात करूं या मैं अपने फैमिली की बात करूं जिनने इस पूरी टेक्नोलॉजी को नहीं समझा है, तो उनके लिए जनरली रोबोटिक्स जो है वो एक मूवी की चीज होती है। एक साईफाई मूवी के अंदर एक रोबोट, एक व्यक्ति चलता हुआ आया और वो पूरा वो कांच के ऊपर हाथ लगा रहा है, बहुत सारी चीजें से कर रहा है, इसी को हम लोग जनरली रोबोटिक्स समझते हैं। सो कॉमन व्यू इज रोबोट्स एज ह्यूमनॉइड्स, वो एक पार्ट है, बट बहुत सारा जब मूवीज में हम देखते हैं तो वो एक साईफाई लर्निंग, साईफाई टाइप का होता है, उसमें बहुत सारी इमेजिनेशन होता है। बट अगर मैं एक्चुअली इसको समझूं तो एक्चुअली रोबोटिक्स जो है ये 3 चीजों का मेनली कॉम्बिनेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। फर्स्ट इज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग एंड मैकेनिकल। इसके अंदर चूंकि हमको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो मूव करेगा, तो इसके अंदर मैकेनिकल स्ट्रक्चर, उसका ऊपरी ढांचा वो हमको यूज करना पड़ेगा, चाहे वो 2 पैर का हो, चाहे वो 4 पैर का हो, चाहे वो व्हील टाइप का मूवमेंट हो, किसी भी टाइप का मूवमेंट हो सकता है, वो एक रोबोट कहला सकता है। तो एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा उसका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जिससे वो मूव करेगा या जिसके माध्यम से हम उसको मूव करवाएंगे। अभी मैं आपको कुछ रोबोट बताऊंगा जिसके अंदर सेंसर्स के बारे में बताऊंगा। और थर्ड, जब मैं उन सेंसर्स को लगाऊंगा तो मुझे उनको प्रोग्राम करना होगा। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 3 ब्रांचेस। जनरली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट की जब बात करते हैं तो वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ता है, दैट इज वेरी गुड। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के पढ़ता है, बट रोबोटिक्स में हम जब काम करते हैं तो इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिलता है, पहला। दूसरा, प्रोग्रामिंग प्योरली सिर्फ प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें जो है हम सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, बट जब हम रोबोट्स के साथ में प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो प्रोग्रामिंग जो है वो लाइव हम रोबोट के अंदर चलते हुए भी देख सकते हैं। एक चीज और मैं यहीं पे इसी पॉइंट ऑफ टाइम में क्लियर करना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि स्टूडेंट्स जनरली मानते हैं कि आजकल मार्केट में वो जो वो मैकेनिक्स टाइप की किट आती है जिसको वो जोड़ दिया, स्क्रू कस दिया और वापस खोल दिया, उसी को रोबोट समझते हैं। वो एक पार्ट है, उसको हम लोग मैनुअल रोबोट्स बोलते हैं, बट देयर आर वे मेनी मोर थिंग्स देन जस्ट अ मैकेनिक्स ओरिएंटेड रोबोट। सो मैं उसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद में इसमें जो है इमोशनल इंगेजमेंट होता है, इंटरेक्शन विद फिजिकल डिवाइसेस, हम फिजिकल डिवाइस के थ्रू इंटरेक्शन कर सकते हैं सेंसर्स लगा के। लर्निंग बाय डूइंग, इस फील्ड के अंदर हम जब काम करते हैं तो हम कोई भी चीज करके देखते हैं, फिजिकली हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है। मल्टी डिसिप्लिन लर्निंग है, मैंने आपको बताया इसके अंदर बहुत सारी टाइप की लर्निंग है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती है। किसी प्रॉब्लम को आप एनालाइज करोगे, उसके ऊपर थिंकिंग करोगे, आप टीम वर्क में काम करोगे, बहुत सारी चीजें। और इसमें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है, आप चीजों को जोड़ के कोई चीज बनाते हैं, और जब वो बनाते हैं चाहे वो बहुत छोटी सी चीज हो, आई एम डैम श्योर कॉन्फिडेंट कि वो छोटी सी चीज भी हो, जब भी आप उसको बनाएंगे आपको एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस जो है वो महसूस होता है। आपने देखा होगा वीडियो जो अभी कॉलेज की तरफ से प्ले किया गया, उसमें स्टूडेंट्स, छोटे छोटे बच्चे जो हैं इस फील्ड में काम कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। सो अब इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम इसमें देखते हैं कि व्हाट आर दी डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट्स। जनरली कौन कौन से रोबोट्स जनरली यूज किए जाते हैं या जा सकते हैं। सो फर्स्ट टाइप ऑफ रोबोट दैट इज कॉमनली यूज्ड is known as the playback robot. Playback robot क्या होता है? It's a human operator perform the task manually by leading the robot. तो फर्स्ट टाइप के रोबोट होते हैं उनको हम लोग जो है प्लेबैक रोबोट बोलते हैं। इसमें पूरा कंट्रोलिंग रोबोट का जो होता है वो पूरा ह्यूमन डिपेंडेंट होता है। ह्यूमन डिपेंडेंट मतलब उसको ह्यूमन ही चलाएंगे, उसके ऊपर आप एक बहुत ब्रॉड एग्जांपल की बात करूं, मैं एक नॉर्मल लेमन टर्म की बात करूं तो लेमन टर्म में एक जेसीबी मशीन आप देखते हैं तो वो जेसीबी मशीन काइंड ऑफ एक रोबोट कंसीडर हो सकता है, और वो जेसीबी मशीन खड़े खड़े कुछ नहीं कर सकती जब तक उसको ह्यूमन चलाएगा नहीं, तो हम उसको एक प्लेबैक रोबोट कह सकते हैं। दूसरा होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल रोबोट। न्यूमेरिकल कंट्रोल रोबोट जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होती है रोबोटिक्स के अंदर, मतलब पहले तो मैनुअल बनाएंगे बट जो एक इंटरमीडिएट स्टेप है जिसको हम लोग बोलते हैं वो न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आज की डेट में परफॉर्म की जा सकती है। आप लोगों ने मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सुना होगा, सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, पाइथन और रिलेटेड जितने भी इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और उन प्रोग्रामिंग के आधार पे रोबोट काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, एक मैंने सेंसर लगाया किसी रोबोट के ऊपर और उस सेंसर से मैंने किसी मोटर को कंट्रोल करा। एग्जांपल के रूप में मुझे मान लीजिए अभी आपने इंदौर के अंदर एक न्यूज सुनी होगी कि एक रोबोट बना है जिसमें आप सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं करेंगे तो अपने आप बजर बजेगा। मतलब उसमें क्या एक सेंसर लगाया हुआ है जो कि सेंस कर रहा है कि कितने दूर पे कोई व्यक्ति है, जैसे ही एक लिमिट से कम कोई व्यक्ति आ जाएगा तो उस पर बजर बज जाएगा।
तो ये जो पूरा सिस्टम है ये क्या हो गया, न्यूमेरिकल कंट्रोल रोबोट। इसके अंदर अच्छी बात ये है कि अगर आपने 10 इंस्ट्रक्शंस उसको बताई है रोबोट को, तो वो 10 की 10 इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, बट ये 10 से 11वीं इंस्ट्रक्शन के ऊपर अपने आप काम नहीं कर सकता। इसके फायदे भी हैं और इसके घाटे भी। तो इसी के बाद में इसी चीज को आगे लेते हुए मैं आपको बताऊंगा कि इंटेलिजेंट रोबोट क्या होते हैं। तो इंटेलिजेंट रोबोट जो होते हैं वो न्यूमेरिकल कंट्रोल रोबोट का एडवांस वर्जन होते हैं, जिसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम लगी हुई होती है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स के अंदर क्या होता है, या जो प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर क्या होता है कि आप जो है बेसिक चीज करवाने के लिए रोबोट को बोलते हैं, वो तो परफॉर्म करता ही है, बट साथ में ऐसी अननोन सिचुएशन अगर उसके सामने आ जाए तो उन सिचुएशन के ऊपर नहीं रिस्पॉन्ड करने के बजाय उनको भी वो रिस्पॉन्ड करता है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब हम ह्यूमन का जो इंटेलिजेंस होता है उस इंटेलिजेंस को हम रोबोट के अंदर मिमिक करवाते हैं। एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताऊं कि एक आपने मान लीजिए घर पे एक प्रेस रखी हुई है, एक ट्रायंगुलर शेप का एक प्रेस का जो फिगर होता है, आपने कभी गलती से उसको बचपन में हाथ लगाया होगा, तो उससे वो अगर चलती भी होगी तो आपको गरम लगा होगा। जैसे ही आपने हाथ लगाया, गरम लगा, तो अगली बार जब भी आप कोई वो ऐसी हैंडल पकड़ने वाली ट्रायंगुलर चीज को आप जब भी देखेंगे तो आपका अपने आप इंटेलिजेंस काम करेगा कि भैया यहाँ पे इसको हाथ नहीं लगाना है, भले ही वो चालू है या तो बंद है। ये इंटेलिजेंस ह्यूमन बीइंग के पास में होता है, और यही इंटेलिजेंस हम मशीन्स को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट या इंटेलिजेंट रोबोट कहते हैं। ठीक है, सो दीज आर द 3 बेसिक व्हाट यू कैन कॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ द रोबोट। तो जब आप जर्नी को स्टार्ट करते हैं कहीं पे भी, जब आप ये 12th के बाद में जर्नी को स्टार्ट करते हैं, तो आप जो है फर्स्ट 2 स्टेप्स को प्रोमिनेंटली काम करते हैं। जितने भी अभी आप रोबोट्स वीडियो में भी देख रहे थे, या जो मैं अभी जो हमारे भी जो मेनली रोबोट्स हम इंजीनियरिंग के दौरान में जो बनाते हैं वो फर्स्ट 2 स्टेप्स को लेके बनाते हैं, एंड देन स्लोली एंड स्टडीली हम लोग थोड़ा लेटर पार्ट के अंदर इंटेलिजेंट रोबोट्स को भी टारगेट करते हैं। और मैं आपको ये गारंटी दे दूं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज से 5 साल बाद वर्ल्ड के अंदर जॉब्स के अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ द टॉप 3 फील्ड्स जिसके अंदर जॉब्स मिलने वाले हैं वो है रोबोट्स। आज हम अपने आसपास में भी कोविड-19 के समय में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए हर जगह जो है इन रोबोट्स को अब धीरे धीरे देखने वाले हैं। तो अगर आज से हम इसके ऊपर प्रिपरेशन करते हैं, फ्यूचर जॉब्स के ऊपर अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तो हम शायद इस फील्ड के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन भी दे पाएंगे और हम अपने आप को रेलेवेंट रख पाएंगे इन जॉब्स के लिए। सो लेट मी गो थ्रू। सो इसमें मैंने आपको बताया जब आप 4 इयर्स की इंजीनियरिंग या आपका ग्रेजुएशन जो भी आप करते हैं, 3 इयर्स का ग्रेजुएशन आप करते हैं, तो आप इन दौरान में इन फर्स्ट 2 स्टेप्स के रोबोट्स को आप फॉलो कर सकते हैं, बनाने के लिए काम कर सकते हैं, एंड देन एट द लेटर स्टेज जैसे आप इनको आप मास्टर कर लें तो आप फिर धीरे धीरे जो है इंटेलिजेंट रोबोट्स की तरफ भी जा सकते हैं। इनके बहुत सारी जगह इंप्लीमेंटेशन है, जिसमें से जैसे मैं आपको मल्टीपल टाइप के इंप्लीमेंटेशन जो है बताना चाहूंगा। फर्स्ट टाइप का इंप्लीमेंटेशन जो है वो है माइंड कंट्रोल रोबोट। सो मैं आपको बेसिक रोबोट्स के उसमें नहीं जा रहा। आपने जो भी एसओसी का वीडियो देखा जिसके अंदर एक लाइन फॉलोवर रोबोट बना हुआ था, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे टाइप के रोबोट्स जो थे वो बने हुए थे। ये जो है ये दिस इज द स्टार्टिंग जर्नी ऑफ अ रोबोटिक्स इंजीनियर। जब शुरुआत में हम काम करते हैं तो इसके ऊपर हमको स्टार्टिंग करना पड़ता है, और साथ में अच्छी बात ये होती है कि इनसे संबंधित वर्ल्ड में बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले सर बता रहे थे कि यहाँ की टीम जो है वो यूरोप और चाइना भी होके आई, तो वहां पे जो है इन टाइप के कॉम्पिटिशन्स के अंदर उन बेसिक रोबोट्स के अंदर हम जब काम करते हैं, मतलब उन बेसिक रोबोट्स के ऊपर उन कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और उस पर जब हम काम करते हैं तो उस पर धीरे धीरे हम एक्सपर्टीज पा लेते हैं। मैं अभी आपको जो मेनली रोबोट्स जो बताने वाला हूँ वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड रोबोट्स के बारे में बताऊंगा, और साथ में जो एडवांस्ड काम हो सकता है उनके बारे में बताऊंगा। तो द फर्स्ट रोबोट इज माइंड कंट्रोल रोबोट। तो व्हाट एग्जैक्टली इज माइंड कंट्रोल रोबोट? इसमें क्या होता है, आपने अगर स्टीफन हॉकिंस के बारे में सुना होगा, तो स्टीफन हॉकिंस जो थे वो बहुत समय तक उनका पूरा हाथ पैर और पूरी बॉडी काम नहीं करती थी, बट उनके पास में एक रोबोट था जिसमें वो जो भी चीजें सोचते थे वो रोबोट अपने आप उसको समझ लेता था और समझ के उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता था। सो इसमें क्या होता है, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जेनेटिक एल्गोरिथम, बहुत सारी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है। दैट इज आल्सो अगेन अ पार्ट ऑफ रोबोटिक्स। इससे घबराने और डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जब आप उस प्रोसेस में अपने आप जब एंटर करोगे तो ये सभी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। ये वैसा ही है जैसे हम पहाड़ को यहाँ से दूर से देखें तो पहाड़ आपको बहुत बड़ा लगेगा, अरे यार इसको कैसे चढ़ेंगे, बट जैसे ही आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा अरे यार ये तो बहुत सिंपल था।
सो रोबोटिक्स के अंदर, एडवांस चीजों के अंदर बहुत सारी चीजें। सो माइंड कंट्रोल रोबोट्स के अंदर क्या होता है कि हमारे माइंड के जो ईसीजी, ईईजी जो सिग्नल्स होते हैं, उन सिग्नल्स को हम रीड करते हैं सेंसर्स के माध्यम से, और उन सिग्नल्स को हम लोग फिर कन्वर्ट करते हैं अपने प्रोग्राम में, उसको रीड करते हैं, वो सेंसर्स हमारे पास में आते हैं, और उन सेंसर से हम ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर ये लगा हुआ है सिस्टम, वो क्या सोच रहा होगा, और उसको हम धीरे धीरे कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जो है, इसके ऊपर काम हो रहा है या काम किया हुआ भी है, और इसके ऊपर आने वाले समय में हम बहुत सारा डेवलपमेंट जो है वो देखेंगे इन टर्म्स की ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल जो होते हैं, ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार्स हैं, इन सभी के अंदर जो है धीरे धीरे इन टाइप की चीजों का, और इवन जो सीवियरली इल पेशेंट्स हैं, उनसे जो लोग बात नहीं कर पाते हैं, जिनको लकवा आ जाता है, जिनको पैरालिसिस हो जाता है, वो लोग भी उनको इन डिवाइसेस को पहना के उनके अंदर के जो चीजें हैं उनको समझने की कोशिश की जा सकती है। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति ने पूरे सिर के ऊपर अपना एक वो पहन रखा है, और उससे वो चीजें जो है, उसकी जो व्हील चेयर है वो एक मतलब ऑटोमेटेड व्हील चेयर है, और उसके सिग्नल्स को कन्वर्ट करती है। The second important revolutionary thing that is coming up right now is cleaning robots. So अभी मैं एक रिसेंटली स्टार्टअप से मिला जिसके अंदर जिन्होंने भी रिसेंट में ही एक बहुत बड़े इन्वेस्टर से फंडिंग रेज करी, वो लोग जो हैं वो क्लीनिंग रोबोट बनाते हैं इंडस्ट्रीज के लिए। अब इंडस्ट्री के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ धूल, कचरा और ये बहुत सारी चीजें निकलती है, और इसके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ लेबर क्लास लगता है, और वो लेबर क्लास भी कई बार आए नहीं आए, जो भी बहुत सारी चीजें होती है। तो उसके कारण जो है बहुत बड़ा चैलेंजेस आता है, और कई बार इसके कारण जो वर्ल्ड लेवल के सर्टिफिकेशंस होते हैं इंडस्ट्री को जो मिलने चाहिए, वो इस गंदगी के कारण या इस पैमाने को नहीं रखने के कारण उनको नहीं मिल पाते। सो वो जो रोबोट कंपनी स्टार्टअप है, वो इस टाइप के रोबोट्स को बना रहा है जो कि ऑटोमेटिक फ्लोर क्लीनिंग जो है वो कर सकता है। फ्लोर क्लीनिंग घर पे भी की जा सकती है, छोटे से, आपने देखे होंगे अभी आजकल बहुत ऐड चलता है, छोटे छोटे इतने से रोबोट्स हैं, इसी का ही वर्जन है वो छोटे लेवल पे काम कर सकते हैं। ये बड़ा रोबोट है और ये जो है ऑटोमेटिक चलता है, इसमें ह्यूमन को चलाने की जरूरत नहीं है। इसकी सबसे बेस्ट बात मैं आपको बताऊं वो ये है कि आप जब भी किसी एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रखोगे, लेट्स से मैं इसको मेरी इंडस्ट्री के अंदर रखता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मेरे जो इंडस्ट्री का इंटरनल रूम का मैप है, उस मैप को मैं इस रोबोट के अंदर फीड कर दूंगा, और वो मैप के हिसाब से मैं इसके अंदर बता दूंगा कि कहां इसको ऑब्स्टिकल मिल सकते हैं। रोबोट जब वो उस मैप को रीड करेगा तो वो ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड करते हुए बाकी बची भी जो जितनी भी खुली जगह है वहां पे अपने आप वर्कआउट करेगा। ह्यूमन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, अपने आप पूरा जगह जाएगा, पूरी क्लीनिंग करेगा और अपने जो बेस लोकेशन है वहां पे वापस आ जाएगा। आप पूछेंगे कि सर इसके सामने चलते चलते अगर कोई रोबोट आ गया तो फिर क्या करेंगे? तो जब ये रोबोट अगर आ भी जाता है तो ये अपने आप, उसके अंदर सेंसर होते हैं जिसमें वो अपने आप उसको रुक जाएगा और आगे काम करेगा। अभी जस्ट हमने ही एक दिल्ली की कंपनी है जिसमें हम लोगों ने ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल, इसी टाइप का एक रोबोट जो है जो कि 500 किलो तक का वजन जो है उठा सकता है, वो हमने डिलीवर किया है। इंदौर से हमने बना के इसको पूरा डिलीवर किया है। सो आप लोग भी इस टाइप के रोबोट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ दी इंपॉर्टेंट थिंग। ये आज से 3-4 महीने पहले शायद हो सकता था उतना रेलेवेंट ना हो, बट आज जब कोविड-19 का समय है, पूरी दुनिया जिससे जूझ रही है, तो साफ सफाई जो है वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर हमारी लाइफ का बन चुका है। तो इन टाइप के रोबोट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। The third important thing, the third type of robot that I wanted to show here is the prosthetic robotic arm. This is also a very revolutionary type of robot. One of my student, एक मेरा स्टूडेंट है 2012-13 में मुझसे रोबोटिक्स पढ़ा था, उसी स्टूडेंट ने अभी एक पूरा प्रोस्थेटिक आर्म बनाने का अपना एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाया। आपने शायद फेसबुक पे देखा भी होगा या व्हाट्सएप पे आपका मैसेज भी आया होगा। मिलाप के ऊपर एक क्राउड फंडिंग कैंपेन चला जिसने सिलिकॉन के ऊपर अपना एक हाथ बनाया पूरा, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगा हुआ है, बहुत सारी चीजें, सेंसर्स लगी हुई है। इसी टाइप के प्रोस्थेटिक आर्म्स जो है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि हमारे हाथ, एक हाथ भी नहीं है, मान लीजिए एक उंगली नहीं है, तो हम क्या अपने आप को कैसा महसूस करेंगे? जिनके हाथ नहीं होते उनकी पीड़ा समझना हमारे सोच से परे है। तो इन रोबोट्स के माध्यम से हम उनको एक नया जीवन टाइप दे सकते हैं जिसमें ये हाथ जो है ये माइंड सिग्नल के थ्रू चलते हैं, और जैसे हम जो भी चीजें सोचते रहते हैं, देखिए इसमें माइंड कंट्रोलिंग भी आ गया, तो जो हम सोच रहे हैं वो हमारा हाथ उस टाइप से परफॉर्म कर रहा है। मतलब मैंने सोचा कि गिलास को पकड़ना है तो वो गिलास पकड़ लेगा, फिर मैंने सोचा कि इसको नीचे रखना है, उसके बाद में छोड़ना है तो वो छोड़ देगा।
इन टाइप के रोबोट्स पे बहुत बड़ा काम चल रहा है। और ये हम इस जिसको बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, मानव मात्र के लिए बहुत बड़ा इन्वेंशन के रूप में हो सकता है, जिसमें ऑटोमेटिक लेग्स भी शामिल हैं। तो इसके अंदर हाथ की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हाथ के अंदर बहुत सारे मूवमेंट होते हैं। हमारे हाथ में एक उंगली के अंदर देखो तो मैं 3 मूवमेंट्स होते हैं। हमारे कलाई का मूवमेंट होता है, हमारे कोहनी का मूवमेंट होता है। तो ये सभी मूवमेंट्स मतलब ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टाइप क्रिएट होता है। तो उसको जब हम उस पर काम करते हैं तो इनको प्रोस्थेटिक आर्म्स या प्रोस्थेटिक्स बेस्ड रोबोट्स की कैटेगरी में डालते हैं इनको हम लोग। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें भी देखिए मैं आपको जब बता दूं, इस रोबोट की जब आप बात कर रहे हैं तो इसमें मैकेनिकल स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स भी अवेलेबल है और इसके अंदर प्रोग्रामिंग भी अवेलेबल है। प्रोग्रामिंग के बाद में इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्रामिंग भी अवेलेबल है, जिसके अंदर आप माइंड सिग्नल को भी रीड कर सकते हैं। सो दिस इज प्रोस्थेटिक आर्म्स। मैं ये सब चीजें आपको क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपका एक इमेजिनेशन क्रिएट हो कि रोबोटिक्स की फील्ड में क्या काम होता है। जनरली हमारा इमेजिनेशन वो साईफाई मूवी से ऊपर नहीं जा पाता, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि कौन कौन सी फील्ड में आप रोबोटिक्स के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। सो द नेक्स्ट रोबोट इज ह्यूमनॉइड रोबोट्स। So humanoid robots is another very important and important thing right now available. आपने SoftBank का एक रोबोट देखा होगा जो कि नाउ है, नाउ जिसका नाम है, जो कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर ऑटोमेशन का काम करता है और एक बहुत रिवॉल्यूशनरी रोबोट है जिसके अंदर पूरा हमारा बॉडी के अंदर जितने मूवमेंट्स होते हैं, जिसमें हाथ के मूवमेंट भी हो गए, पूरे हमारे कंधे के मूवमेंट हो गए, रोबोट्स के पूरा पैर का मूवमेंट हो गया जिसमें घुटने और पूरा सा पूरा आ गया, गले का मूवमेंट हो गया, इसमें आंखें आप देख रहे हैं, इसमें कैमरे लगे हुए हैं, पूरा एक जिसको बोल सकते हैं ह्यूमन टाइप का स्ट्रक्चर हम लोगों ने इस रोबोट के अंदर बनाने की कोशिश करी सॉफ्टबैंक के थ्रू। वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट रोबोट अवेलेबल ऑन प्लेनेट अर्थ। सो ये जो है इस पे बहुत सारा काम हो रहा है। जब मैं इन बड़े रोबोट्स की बात करता हूं तो एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज हमारे सामने आता है कि इतनी सारी डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट करके उनको आपस में कोऑर्डिनेट करवाना। जब मैं इन कैमरा भी लगा रहा हूं तो ह्यूमन डिटेक्शन हो रहा है, वो आंखें देख के मतलब सामने व्यक्ति आया तभी बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो घूमते घूमते अपने आप ही बात करते जा रहा है। तो ये सभी चीजें जो है इसके अंदर रोल प्ले करती है। इसमें आप एक स्क्रीन देख रहे हैं जो कि इंटरेक्शन करती है रोबोट ह्यूमन के साथ में। इसमें वॉइस रिकॉग्निशन है जो कि अपने आप बात करने का फीचर है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, व्यक्ति क्या बोल रहा है, जैसे कि आप गूगल असिस्टेंट, अमेजॉन एलेक्सा के साथ में जब बात करते हैं तो वैसा ही फीचर इस रोबोट के अंदर इंप्लीमेंटेड है जो कि ह्यूमन से बात करने के लिए काम आता है। तो ये रोबोट, ह्यूमनॉइड रोबोट जो है, इसको मैं मेरे टर्म्स में कह सकता हूं कि दिस इज one of the at par level of robots that you can develop in the field of robotics. Why I am telling this is because इसके अंदर extreme level का mechanical structure लगता है, extreme level का electronic का सिस्टम पूरा इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा कंप्यूटर जो कि मल्टी प्रोसेसिंग मल्टीटास्किंग कर सकता है, हमारे एक नॉर्मल कंप्यूटर से बड़ा 4 टाइम्स 5 टाइम्स बड़ा कंप्यूटर इसके अंदर इंप्लीमेंटेड है। और साथ में इसमें एक अच्छे लेवल की प्रोग्रामिंग जरूरत है। और ये पूरा की पूरा ऐसा नहीं कि वायर से कनेक्टेड है तो वायर पीछे झूलते हुए जा रहा है, ये पूरा बैटरी ऑपरेटेड है। तो इसके अंदर पावर कंजम्पशन और उससे रिलेटेड फील्ड भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे सामने। तो ये एक ऐसा रोबोट है जिसके ऊपर हम एस्पायर कर सकते हैं आगे आने वाले समय पे अपने आप को डेवलपमेंट करने का। मेरी टीम इंदौर में, मैंने आपको जैसे बताया, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ इडूस्फेयर, तो हम लोग की टीम इंदौर के अंदर इन टाइप के रोबोट्स के ऊपर बहुत प्रोमिनेंटली काम कर रही है, जो कि ये पूरा की पूरा डेवलपमेंट करते हैं। सो ये एक वन ऑफ द मोस्ट एस्पायरिंग रोबोट्स जो मैं देखता हूं। आप लोगों ने होंडा का एक रोबोट देखा होगा, असीमो, वो भी एक टाइप का ह्यूमनॉइड रोबोट ही है। सो इन टाइप के रोबोट्स के ऊपर हम लोग काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी टीम जो है इंदौर में, हम लोगों ने एक सर्विंग रोबोट बनाया है जो कि सर्विंग करता है। और साथ में आप लेफ्ट हैंड साइड में जो मैत्री देख रहे हैं, ये मैत्री जो है ये टॉकिंग रोबोट है, ये बात करती है। आप इसके सामने जैसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो ये स्पेसिफिक उन क्वेश्चंस को लर्न करके समझ के उसका एक उत्तर देने की कोशिश करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन डिस्कवरी करी है, बट मैं ये प्राउडली जरूर कह सकता हूं कि ये पूरे रोबोट सेल्फ डेवलप, पूरे इंडिजीनियस इंदौर के अंदर डेवलप किए हुए और इन स्टूडेंट्स के माध्यम से डेवलप है। सो कहने का मतलब यह है कि आज टेक्नोलॉजी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एज। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, और आप लोगों ने भी वीडियो में भी जो देखा, एसओसी के वीडियो में बहुत सारे छोटे स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स
जो फर्स्ट ईयर में है या स्कूल के बच्चे इन टाइप की फील्ड्स के अंदर बहुत प्रोमिनेंटली काम कर रहे हैं और अपना करियर इस फील्ड में बना रहे हैं। तो आप लोग भी इसके अंदर सोच सकते हैं, काम करने के लिए एक थोड़ा सा अपना एक ज़ील बना सकते हैं। और एक चीज और मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू में कहना चाहूंगा कि जब मैं इस फील्ड में आने के लिए सोच रहा था तो मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो एमपी बोर्ड स्कूल से कंप्लीट की। तो एमपी बोर्ड स्कूल जो है वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वहां पे उतने रिसोर्सेज नहीं होते और प्रोग्रामिंग के प्रति भी उतना हमारा खुद का एक्सपोजर नहीं था। तो मेरे लिए दिमाग में क्वेश्चन था कि मेरे को इस फील्ड में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बट मैं आपको ये गारंटी के साथ में कह दूं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी नॉलेज दैट यू हैव, आपको कभी कोई नॉलेज नहीं भी है तो भी आप कंफर्टेबली इस फील्ड के अंदर आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। शर्त एकमात्र ये है कि आपको इसके अंदर इंटरेस्ट है तो आप बहुत अच्छे से इसके अंदर काम कर सकते हो। मैं देखता हूं कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं जाना था वो आज बहुत अच्छे रोबोट बना रहे हैं। मेरा एक 8th क्लास का स्टूडेंट है, वो आज पाइथन प्रोग्रामिंग काम कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में स्मार्ट हैकेथॉन्स और उन सब चीजों में पार्टिसिपेट करता है। तो कहने का मतलब यह है कि आज टेक्नोलॉजी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एज एंड ऑन विच बैकग्राउंड यू आर कमिंग फ्रॉम। आप भले ही किसी बैकग्राउंड से आपके पास में इंटरेस्ट है तो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि आप उसके अंदर अपना काम कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट जो है मैं आपको रोबोट जो आपने अगर फेसबुक पे वीडियोस बहुत देखे होंगे जिसमें आपने बॉस्टन डायनामिक्स का नाम सुना होगा। बॉस्टन डायनामिक्स इज वन ऑफ दी प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस वर्ल्ड जो कि रोबोटिक्स में बहुत काम कर रही है। तो आप ये देख लें कि रोबोट जो है ये अलग अलग टाइप के रोबोट्स हैं। ये रोबोट्स की इतनी कैपेबिलिटी है कि इवन अपनी बातों को सुन भी सकते हैं, बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और साथ में मैकेनिकल कैपेबिलिटी ऐसी है कि ह्यूमन को एट मैक्स लेवल पे ये मिमिक कर लेते हैं। मतलब आपने अगर अभी रिसेंट में एक रोबोट देखा हो जो कि जंप मार लेता है, मतलब जंप मार के फ्लिप कर लेता है। जंप का मार के फ्लिप करना जिसे जो ह्यूमन कर पाता है is one of the most complex job that a robot can do. I was amazed to see that type of robot that is already been developed by Boston Dynamics. So आज इंडिया में अगर मैं बात करूं तो नासा है, इसरो है और जो भी बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, वो इन सब टाइप के रोबोट्स के ऊपर बहुत प्राइमरली काम कर रहे हैं। आप जो ये 3rd 4th नंबर का रोबोट देख रहे हैं, ये 4 लेग रोबोट है। पहले शुरुआत के 2 रोबोट जो हैं ये 2 व्हील्ड रोबोट हैं, बाकी के 3 जो रोबोट है ये 4 व्हील्ड रोबोट हैं। तो ये जो है ये एनिमल्स को रिप्लिकेट करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए एक डॉग, तो एक डॉग जो है वो अलग अलग पहाड़ियों पे अलग अलग टेरेन्स के ऊपर चढ़ सकता है। तो ये रोबोट्स के माध्यम से इन टाइप के टेरेन्स के ऊपर कैसे चढ़ा जा सकता है, इसका मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि जैसे कि मान लीजिए किसी एक स्पेसिफिक जगह पे टेररिस्ट अटैक हो गया। अब वहां पे किसी अगर मैं आर्मी सोल्जर को भेजूंगा तो वो एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है क्योंकि वहां पे लैंड माइन्स हो सकती है, वहां से सामने काउंटर अटैक हो सकता है। बट मैं अगर इन रोबोट्स को भेजूं तो भले वो इनके ऊपर गोली भी चला दे, इन टाइप के रोबोट्स को कुछ हो नहीं सकता। पहली बात ह्यूमन कैजुअलिटी बचेगी और ये बड़े बड़े टेरेन्स के ऊपर भी जाके काम कर सकते हैं। इस टाइप के रोबोट जो है वो नासा और इसरो जो है वो मार्स के ऊपर जो मिशन चल रहा है उसमें मार्स के ऊपर भेजने के लिए ह्यूमन को भेजने के बजाय इन रोबोट्स को भेज के वहां पे अलग अलग टेरेन्स के ऊपर ये काम कर सके, इस पे बहुत बड़ा काम जो है वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है। तो बॉस्टन डायनेमिक्स को आप फॉलो कर सकते हैं और इन टाइप के रोबोट्स पे क्या काम होता है, कैसे इस पे काम हो सकता है, उनके ऊपर थोड़ा सा विचार मंथन कर सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं कि कोई भी नई चीज जब आप टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड देखें तो उसके लुक एंड फील, उसके कलर वलर को तो ठीक है एक नॉर्मल व्यक्ति भी देखता है, बट उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है, उसके अंदर क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सोचना स्टार्ट कीजिए और अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछिए कि इसके अंदर कैसे काम हो सकता है। इस तरीके से आप इस फील्ड के अंदर अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं और शायद अपना जो काम है उसके अंदर वो कर सकते हैं। लास्ट जो रोबोट इसके अंदर जो बहुत ज्यादा काम आता है वो है इंडस्ट्रियल रोबोट। इंडस्ट्रियल फील्ड्स के अंदर ये रोबोट्स बहुत ज्यादा काम आते हैं जिसमें ऑटोमेटिक असेंबली लाइन होती है। जैसे आपने देखा होगा कोको कोला की जो बॉटल बनती है उसका कैप करना, उसको पूरा के पूरा तो ये पूरे ये ह्यूमन ये एक टाइप के वो हैं रोबोटिक हैंड टाइप के हैं जो कि एक काम को बार बार आपने अगर प्रोग्रामिंग कर दी है तो पूरा की पूरा काम जो है उस प्रोग्रामिंग के आधार पे अपने आप करेंगे। तो ये जो है आप राइट हैंड साइड में कार की असेंबली देख रहे हैं, ये कार की असेंबली जो है अगर एक ह्यूमन बीइंग करने जाए तो हो सकता है कि 2 से 3 दिन के अंदर भी एक पूरी कार असेंबल नहीं हो पाए। बट ये कार जो है अगर आप टाटास का, मैं एग्जैक्टली नाम थोड़ा भूल रहा हूं, बट टाटास की ये रिपोर्ट आई थी कि
टाटा की एक कार जो है वो 10 मिनट के अंदर असेंबल होके बाहर आ जाती है। मतलब पूरे कंपोनेंट जो है वो असेंबल जुड़ के पूरे कंप्लीट बाहर आ जाए, तभी तो इस लेवल पे, बड़ी लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हैं वो। इतने बड़ी बिलियन 130 करोड़ लोगों की नीड्स को फुलफिल करना सिर्फ इंडिया के अंदर और बाहर के अंदर अलग, इनको लिए आपको बल्क मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये रोबोट जो है वो इफेक्टिवली आपका जो काम है वो बहुत इजीली कर लेते हैं। देखिए पहले असेंबलिंग के अंदर ह्यूमन काम करते थे, अब असेंबलिंग की जगह इन रोबोट्स को ऑपरेट करने में ह्यूमन का काम बढ़ेगा। तो देखिए बहुत सारे लोग मेरे से एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि सर ये रोबोट्स के आने से जॉब चली जाएगी क्या? नहीं, रोबोट्स के आने से जॉब नहीं जाएगी। ऐसा पहले भी लोग जब कहते, जब कंप्यूटर लॉन्च हुआ था तब भी ये लोग कहते थे कि कंप्यूटर आ गया सर तो वो हम लोग रजिस्टर के अंदर लिखते हैं तो वाला जॉब तो चले जाएगा। बट आज की डेट में आप देखेंगे कंप्यूटर आने से वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा जो जॉब अवेलेबल है वो कंप्यूटर की फील्ड के अंदर। तो रोबोट्स के आने से कुछ हद तक जो कन्वेंशनल जॉब्स हैं वो तो चली जाएंगी, बट जॉब्स का टाइप चेंज हो जाएगा। तो आगे आने वाले समय में ऐसे रोबोट्स को ऑपरेट करने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी जो इन रोबोट्स को जानते हो, समझते हो और इन पे इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो इस टाइप के रोबोट जो है ये आप काम करते हैं। देखिए आप ये लेफ्ट वाला जो रोबोट पिक एंड प्लेस रोबोट है, इसके अंदर एक स्क्रीन लगी हुई है जिसमें आप थोड़ा सा देख पा रहे होंगे। तो इसके अंदर आंखें भी हैं दोनों, जो कि पूरा काम को नोटिस कर रहा है कि कैसे काम हो रहा है, प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें क्वालिटी है कि नहीं है। एक चीज और बहुत अच्छी बात यह है कि रोबोट्स को यूज करने से 2-3 चीजें हमको बहुत अच्छी मिलती है। एक, हम कोई भी काम को बार बार कर सकते हैं। बार बार करना मतलब 24 घंटे काम करवा सकते हैं। ह्यूमन बीइंग कोई काम करेगा तो उसको 8 घंटे में जो है रेस्ट की जरूरत पड़ती है, बट रोबोट जो है वो 24 आवर्स काम कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी काम को वो प्रिसाइसली कर सकते हैं, एग्जैक्टनेस के साथ में कर सकते हैं। मैंने अगर बोला कि एक काम को इस तरीके से करना है तो वो 10 में से 10 बार एक ही तरीके से करेगा, जिससे रोबोट का जो प्रिसीजन है, जो काम करने की क्षमता है वो एग्जैक्ट हो जाती है। ह्यूमन बीइंग कर सकता है बट हो सकता है कि 10 में से एक बार शायद उससे कोई चीज गलती हो जाए। तो इस टाइप के रोबोट से हम लोग, और थर्ड, ये दोनों चीजें होने के कारण हम स्केलेबिलिटी कर सकते हैं। अगर आज टाटा आज भी अगर ह्यूमन डिपेंडेंट कार बनाने के बाद मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड होता तो आज इतना बड़ा वर्ल्ड का मार्केट कवर नहीं कर पाता। आज वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने सिस्टम के अंदर रोबोट्स को इंप्लीमेंट किया। और हाँ, आज हर बड़ी कंपनी, मैं पीथमपुर की बहुत सारी कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ जिसमें वो लोग आज कई सारी कंपनीज जो है वो अपने अंदर रोबोटिक्स, अपने सिस्टम के अंदर रोबोटिक्स टाइप के इंप्लीमेंटेशन कर रही है। तो एक दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जिसमें आप इसमें काम कर सकते हैं। मैं चूंकि अभी हमारे साथ में 138 प्लस लोग जुड़े हुए हैं, मैं इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा जो मेरे प्रेजेंटेशन के अंदर है, जो मेरे पास प्री बिल्ड प्रेजेंटेशन है। इसी रोबोट्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो काम करती है वो है 3D प्रिंटिंग। आज की डेट में जो रोबोटिक्स की एक्सटर्नल बॉडी की अगर मैं बात करूं तो एक्सटर्नल बॉडी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी बल्क मैन्युफैक्चरिंग करवाना पड़ेगी, एक डाई बनाना पड़ेगी, वो हजारों लाखों रुपए का खर्चा होता है। बट 3D प्रिंटिंग वो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम घर बैठे, एक नॉर्मल प्रिंटर कैसा होता है हमारा 2D प्रिंटर जो कि कागज के वो प्रिंटिंग करता है, वैसे ही प्रिंटिंग हम 3D प्रिंटर से किसी एक फिजिकल ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पास में देखिए 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट है मेरे पास में। ये 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ये देखिए मेरे रोबोट, ये मेरे 3D प्रिंटर ने बनाया हुआ। इस 3D प्रिंटर की जो डिजाइनिंग है इस पूरे घर की, ये स्टूडेंट ने करी है, और डिजाइनिंग करने के बाद में इसका पूरा इंप्लीमेंटेशन भी स्टूडेंट ने करा। देखिए आप अगर इसका कैमरे में देख पा रहे होंगे तो पूरा हॉलो है अंदर से, और इसके अंदर कोई चीज चिपकी भी नहीं है, ये वन शॉट बना हुआ है, ऐसे की ऐसी प्रिंटर से पूरा बन के बाहर निकला है। तो 3D प्रिंटिंग रोबोटिक्स से कनेक्टेड टेक्नोलॉजी जो कि मैं आज आपको बताना चाहूंगा, जिसके अंदर आप रोबोट्स की एक्सटर्नल बॉडी जो है वो आप डिजाइन कर सकते हो और उसको प्रिंट कर सकते हो। छोटी सी, इतनी सी छोटी सी डिवाइस आती है, प्रिंटर आता है, और उसके ऊपर आप, तो इसमें क्या करना सीखना हमको, हमारा काम क्या होगा, हमारा काम ये होगा कि सबसे पहले हम डिजाइनिंग करें, मुझे क्या चीज बनानी है। जैसे आप ये देखेंगे मेरे सामने ये रोबोट है, ये देखिए मेरा पेन स्टैंड है, ये मेरा पेन स्टैंड मेरे 3D प्रिंटर से बना हुआ है। ये पेन स्टैंड आप देख रहे हैं, पेन स्टैंड, मोबाइल स्टैंड जो है मेरे 3D प्रिंटर से बना हुआ है। आप ये रोबोट मेरे डेस्क के ऊपर रखा हुआ है, ये रोबोट देखिए, ये रोबोट जो है ये 3D प्रिंटेड रोबोट है। इसके अंदर देखिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी लगे हुए हैं पूरे के पूरे, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी भी स्टूडेंट ने जोड़े हैं। तो ये डांसिंग रोबोट है एक प्रकार का, जो कि डांस करता है। तो इस टाइप के रोबोट जो है वो आप खुद डिजाइन कर सकते हो, उस 3D प्रिंटर को ऑपरेट करके प्रिंटिंग कर सकते हो। इतने लेवल की टेक्नोलॉजी हमारे घर पे बैठे बैठे आज हम जो है इन टाइप के रोबोट्स को मैकेनिकल भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम भी कर सकते हैं, वो
प्रोग्रामिंग भी खुद से कर सकते हैं। तो 3D प्रिंटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें लेयर बाय लेयर एक प्लास्टिक का मटेरियल यूज होता है और लेयर बाय लेयर जो है वो एक के ऊपर एक लेयर करके पूरा की पूरा जो स्ट्रक्चर बना सकता है। आप देखेंगे आगे आने वाले समय में 3D प्रिंटेड होम्स ऑलरेडी बन गए हैं, प्रोटोटाइप हो चुका है, पर 3D प्रिंटेड होम्स जो है वो बनना चालू होंगे। 3D प्रिंटेड कार, कस्टमाइज कार आप बना सकते हैं। और आज की डेट में 3D प्रिंटेड ज्वेलरी बनने लग गई है। आप एक तरफ उसको आपका गोल्ड का पूरा रॉ मटेरियल डालो और दूसरी तरफ आपकी पूरी ज्वेलरी बन के निकलेगी। सो ये 3D प्रिंटिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। इस टाइप के अलग अलग टाइप के आप पूरी चीजें जो है इसके अंदर कर सकते हैं। इकोनॉमिकल है, घर पे बैठे बैठे आपका ये पूरा जो काम है, अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में करवाने जाएंगे टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, पैसा ही बहुत लगेगा, बट आप घर पे बैठे बैठे आधे घंटे के अंदर डिजाइनिंग करके प्रिंट कर सकते हो और ये कुछ 100 रुपीज के अंदर मुझे पूरा डेवलप होके मेरे सामने आ चुका है। आखिरी लाइन आप जब देखेंगे इसके अंदर तो इसमें फिटिंग, क्राफ्ट, ज्वेलरी और ये सभी टाइप की चीजें जो है इसके अंदर डेवलप हो सकती है। सो जस्ट टू गिव यू इंट्रोडक्शन, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि समय की हमारे पास में अभाव है। मैं आपके क्वेश्चन लेना चाहूंगा। तो इसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे लोग जो हैं इस पे काम करते हैं अक्रॉस वर्ल्ड इसमें काम करने के लिए। सो मेरा जो पार्ट था जिसके अंदर मैं रोबोटिक्स के बारे में आपसे बताना चाह रहा था वो यहाँ पे खत्म होता है। मैं होस्ट से निवेदन करूंगा कि अगर किसी के कोई क्वेश्चन है, डाउट्स हैं तो वो प्लीज पूछ लें, या आप लोग में से जो पार्टिसिपेंट्स हैं अगर आप लोग भी कुछ क्वेश्चंस चैट के माध्यम से पूछना चाहें तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेश्चंस। Excuse me. Yes, please. Myself Pankaj Kumar Singh from IIT BHU. Yes, I am please. having one question. Yes, please. Which robot will be helpful in housekeeping work? And my second question is, what will be its cost? Thank you. Okay, so very good question. I forgot your name. So housekeeping के लिए मल्टीपल टाइप के रोबोट भी यूज में आ सकते हैं, या एक रोबोट के अंदर सभी चीजें बनाई जा सकती है। जैसे कि एक सर्विंग रोबोट बनाया जा सकता है, सेकेंड जो है वो इंटरेक्शन के लिए रोबोट बना सकता है, थर्ड जो है वो क्लीनिंग पर्पस के लिए रोबोट बनाया जा सकता है, या एक रोबोट जो है वो तीनों कॉम्बिनेशन में बनाया जा सकता है। सो दिस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट दैट वी हैव, और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उस पर डेवलपमेंट कर सकते हैं। नो डाउट, आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट श्योर कि हम खुद से इस पे काम कर सकते हैं। अगर मैं इसके कॉस्टिंग की बात करूं तो चूंकि एक वेग नंबर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि फीचर्स के ऊपर, सेंसर्स के ऊपर, कौन कौन सी चीजें हम उसके अंदर यूज कर रहे हैं उसके ऊपर ये बहुत बड़ा वेरिएबल चीज होती है। बट अगर मुझे प्रोटोटाइप लेवल पे इस पे काम करना है, घर के सिस्टम के लिए खुद से अगर मैं बनाना चाहूँ, किसी कंपनी को खरीदे बना, तो टेंटेटिवली मैं इसको 30,000 से 50,000 तक की रेंज के अंदर एक डिसेंट प्रोडक्ट अपने लिए, अपने खुद के लिए इसके अंदर बना सकता हूँ। हमने खुद बनाया है अपने यूज के लिए, और हमारे कुछ क्लाइंट्स जिनको हम लोग कंसल्टेंसी करते हैं उनके लिए बना के भी दिया है। आई होप आई हैव सॉल्व्ड योर क्वेश्चन। Thank you, sir. Yes, please. I joined Mockatons by seeing this type of lectures. Ended up with a job in software. There is no company in your future job, sir. Either you will join electronics or... Okay, very good question. 1601 सेट, इन्होंने अपना नाम सही नहीं लिखा है। 1601 सेट जो है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मैंने मैकेट्रॉनिक्स लिया था और उसके बाद में मैं सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर जॉब कर रहा हूँ। कई बार इलेक्ट्रॉनिक्स की कोर कंपनी में जॉब करना पड़ता है। तो आपका क्वेश्चन अच्छा है 1601 सेट। बट मैं आपसे ये कह दूं कि आपने शायद इंजीनियरिंग आज से 4-5 साल पहले की थी, और जो भी आपने या तो आपका ग्रेजुएशन किया था, उस समय हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो डेवलप हो रहा था। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, 2014 के पहले इंडिया के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं थी। 2014 के पहले इंडिया के अंदर सिर्फ 2 ही मोबाइल डेवलपमेंट के प्लांट्स थे। आज जो है हंड्रेड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इंडिया के अंदर। बहुत सारी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनी अपने होम ऑटोमेशन के प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, बहुत सारी कंपनी अपने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के प्रोडक्ट्स लेके आ रही है। मैं आपसे अभी स्टार्टअप्स की बात कर रहा था, पुणे में स्टार्टअप है जिनके अंदर अभी जिन्होंने रिसेंटली में 250-300 लोगों के अंदर जो स्पेसिफिकली रोबोटिक्स के अंदर काम करना चाहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। और मैंने आपको बताया कि रोबोटिक्स की फील्ड जो है ये बहुत बड़ी फील्ड है। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको जिसको बोल सकते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट पे काम न भी मिले, आपको हो सकता है प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम मिले, हो सकता है आपको प्योर प्रोग्रामिंग का काम मिले,
बट जब भी आप ये काम करेंगे तो आपको, जब आप इसके अंदर सिलेक्शन होने के लिए जाएंगे, तो आपको जब फुल स्टैक का नॉलेज उस समय अगर रहेगा तो आपको जॉब लेने के अंदर बहुत सुविधा होगी और आप इसके अंदर ब्रेक थ्रू ले सकते हैं। तो आज मेरा इस पॉइंट पे ये कहना है कि आज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज का जो पूरा इकोसिस्टम है, वो आज सपोर्टिव है और इवन बहुत सारी कंपनियां इंडिया में भी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। इवन मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा कि आई ऑलवेज मोटिवेट माय स्टूडेंट्स टू डू एंटरप्रेन्योरशिप। हम इंडियन जो है वो हमेशा जॉब लेने के लिए ही कई बार बहुत सारी चीजें की तरफ जाते हैं, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी जो भी 3 साल का 4 साल का अगर आपका ग्रेजुएशन है और इस दौरान अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहें, अगर आप ऐसे कोई प्रोटोटाइपिंग डेवलप करना चाहें और उसको मार्केट में बेचना चाहें, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप आपके ग्रेजुएशन डेज से ही आप स्टार्ट कीजिए। और अगर उस पर एक सक्सेसफुल काम होता है तो आप जॉब लेना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेना चाहिए, करना चाहिए। बट हम अगर एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेसफुल होते हैं तो हम बहुत सारे लोगों का जीवन सुधार के अपना जो है हम जॉब देने वाले बन सकते हैं और एक इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप करके अपने इस देश के लिए भी बहुत सेवा कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में भी इन सब चीजें करने के बाद में आप एक बहुत बड़ा कैरियर अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं। आई होप आई हैव सॉल्व्ड योर क्वेश्चन। और कौन से क्वेश्चन है? फीडबैक लिंक, I have several questions, many type of programming language used. सर कुछ स्टूडेंट्स ने हैंड रेज करा हुआ है। यस मैं उनसे पूछता हूँ। सुमन राजपूत ने क्वेश्चन पूछा, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड इन रोबोटिक्स। सो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए, रोबोटिक्स के अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अलग अलग समय पे काम होता है। मेरा हमेशा स्टूडेंट से निवेदन होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर अटके ना अपने आप को, आप अपने प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को सुधार लें। प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पे अगर आपने काम कर लिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पे अगर आप काम करेंगे, तो आप कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो पाइथन हो, जावा हो, कोई भी लैंग्वेज के ऊपर काम कर सकते हैं। तो स्टार्ट विद, आपको अगर स्टार्ट करना है तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो आप अपने आप को इस फील्ड के अंदर सी प्रोग्रामिंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल है। आज भी बहुत बड़ी बड़ी वर्ल्ड की एप्लीकेशंस आज भी सी पे चलती है। इवन iOS की एप्लीकेशन अभी तक ऑब्जेक्टिव सी पे काम हुआ करता था, अब स्विफ्ट पे जाके शिफ्ट हुआ है। तो बहुत पावरफुल टूल है। तो आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करें। इंटेंट ये रखें कि आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट सुधरें। जब आप इस पे काम करके आपके कॉन्सेप्ट पे वर्किंग कर लेंगे, तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, किसी प्रोग्रामिंग पे आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। तो सी या C++ लेके आप उससे इनिशिएट कीजिए। और उसको आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रोग्रामिंग करें तो सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के लिए ना पढ़ें, आप एक प्रोजेक्ट लें और प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पढ़ें। जब आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आपकी जो भी लर्निंग है वो लाइव चलते हुए दिखेगी, और जब वो चलते हुए दिखेगी तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आप अपने आप ही नए नए टाइप के प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो दिस इज माय टेक ऑन स्टार्टिंग विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। What is the best platform to learn what is the best platform to learn robotics? So platform to learn robotics मैं इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाया। आपको क्या ऑनलाइन लर्न करना है, सीखना है कि क्या करना है? थोड़ा सा इसको आप एलोबरेट करके भेजिए इस क्वेश्चन को। सुमन राजपूत जी, सर हाउ टू बाइपेप रोबोटिक अचीव बैलेंस एंड स्टेबल रनिंग विदाउट सेंसर्स? सो बाइपेप रोबोट के अंदर मेरा क्वेश्चन है, कौन बोल रहे हैं? ये आवाज किसकी आ रही है? F1 इनको आप म्यूट कर दीजिए मैडम, A1E7 को। तो इसके अंदर जो है बाइपेप रोबोट बैलेंस कैसे अचीव करते हैं, तो विदाउट सेंसर। तो ये क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है क्योंकि सेंसर्स की जरूरत पड़ती है। इसमें अलग अलग टाइप के सेंसर यूज होते हैं। गायरोस्कोप यूज होता है, ग्रेविटी सेंसर यूज होता है, एक्सेलेरोमीटर होता है, जो कि रोबोट के बैलेंस को अचीव करता है। साथ में इसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर इतना सॉलिड बनाना पड़ता है हमें कि हम उसके अंदर मैकेनिकल स्ट्रक्चर से भी बैलेंस अचीव करें, और साथ में सेंसर जो है उसको हेल्प करते हैं सस्टेनेबल करने के लिए, बिना गिरे रोबोट बनाने के लिए। आपने जो वो आजकल 2 व्हील कार टाइप की देखी होगी जिसके ऊपर अपन खड़े हो जाते हैं, अपने आप चलती, तो वो सब सेंसर डिपेंडेंट होती है। तो उस टाइप के सेंसर्स हम अपने रोबोट, बाइपेप रोबोट का मतलब जो लोग नहीं जानते वो है कि 2 पैर वाला रोबोट जो है, उन टाइप के रोबोट्स को बाइपेप बोलते हैं। तो उसको कैसे बनाया जाए, तो उसमें सेंसर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है जिसको हम लोग को यूज करना रहता है। Ravin, I am working in home surveillance robot. Which kind of programming I need?
तो आप टू इनिशिएट विद होम सर्विलांस रोबोट के अंदर सिक्योरिटी और ये बेसिक चीजों के लिए आप सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप काम करना चाहें वो है ऑर्डिनो प्लेटफॉर्म पे आप काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं किसी एक प्लेटफॉर्म को यहाँ एडवोकेट नहीं करूंगा, बट टू स्टार्ट विद, चूंकि जो बेसिक जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स है अक्रॉस वर्ल्ड वो सी प्रोग्रामिंग से ही कहीं ना कहीं ओरिजिनेट हुए हैं। तो आप सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट कीजिए और स्लोली एंड स्टेडीली फिर उस पे इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, बट प्रोजेक्ट सामने रखिएगा, तब लर्निंग करेंगे और उसको रिवर्स इंजीनियरिंग में करेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आप कोई एक प्रोडक्टिव आउटपुट भी आ सकते हैं। इन सभी चीजों को समझने के लिए, सीखने के लिए किसी प्रकार की आपको मेरी कोई हेल्प है तो आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन एनी वेज। इज देयर एनी प्लेटफॉर्म और रोबोटिक सिमुलेशन, ओपन सोर्स सिमुलेशन, बहुत सारे सिमुलेशन टूल हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, पेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसमें आप जो है रोबोट करके, रोबोट सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप यूज करके आपके सिमुलेशन कर सकते हैं। आजकल स्कूल के बच्चों के सिमुलेशन के लिए भी बहुत सारे टूल आ चुके हैं जिसके ऊपर आप जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उनको रोबोट्स के ऊपर चला सकते हो। पहले कॉम्प्लेक्स टूल्स भी होते हैं और जो है सिंपल टूल्स भी अवेलेबल है, उसमें ट्रेजेक्टरी कैसे चलेगा क्या नहीं चलेगा पूरा की पूरा आप पूरा डेवलपमेंट करते हैं। बेस्ट साइट टू लर्न रोबोटिक्स, आई एम गुड इन जावा। तो बेस्ट साइट टू लर्न रोबोटिक्स इज, आप फ्री कोर्सेज देखिए, बहुत सारा स्कैटर्ड कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन यूट्यूब और इन सभी चीजों पे, बट आई वुड प्रेफर इफ यू कैन गो फॉर अ फ्री कोर्स कंटेंट वाया EDX या इनके ऊपर आप सर्च कर सकते हैं कोर्सेरा पे, जो फ्री कंटेंट है। इससे स्टार्ट करके आपका इंटरेस्ट देखिए और फिर मैं आपको सेशन दूंगा किसी एक स्पेसिफिक मेंटोर के अंडर, किसी एक गाइड के अंडर, क्योंकि क्या होता है कई बार कोई छोटे से सेंसर काम नहीं कर रहे हैं, कोई चीज काम नहीं कर रही तो हमारा मोटिवेशन लॉस हो जाता है और हम लोग कई बार फील्ड को ही दोष देते हैं कि मेरे लिए नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा कि इसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक मेंटर को पकड़िए, उनसे आप उनके गाइडेंस के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, आपको इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आप प्रोडक्टिव चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप कर सकते हैं। बट अभी इनिशिएट विद, यू कैन ऑलवेज गो फॉर ऑनलाइन कोर्स इन EDX और Coursera. Best technical certification for educators in robotics and automation. एजुकेटर्स के लिए तो जितनी भी बड़ी डेवलपमेंट कंपनीज हैं, जैसे अगर आपको मैं बताऊं कि जो चिप बनाने वाली कंपनी है ST इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फिर जनरल, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े, मैं थोड़ा सा नाम स्लिप हो रहा है, बट बहुत सारे बड़े बड़े जो रोबोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं इनके अपने सर्टिफिकेशन होते हैं। सिस्को भी कुछ सर्टिफिकेशन करवाता है, इन सर्टिफिकेशंस को आप देख सकते हैं। इवन जो भी आजकल प्रोमिनेंटली लॉकडाउन के बाद तो बहुत प्रोमिनेंट हो गया, तो ऐसे बहुत सारी जो मैं आपको फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, इन प्लेटफॉर्म पे जाके भी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, जो कि नो डाउट आपके प्रोफेशनल करियर में काम करेंगे, बट वो तभी काम करेंगे जब आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा किसी भी चीज को करने के लिए। और ये फील्ड पूरी जो है हार्डवेयर ड्रिवन ज्यादा है, प्योर कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं है, तो इसके अंदर आपको भिड़ के काम करना पड़ेगा, कभी जमीन पे ही बैठना पड़ेगा, शर्ट कपड़े खराब भी करना पड़ेंगे, तो आपको एक डेडिकेटेड अप्रोच रखना पड़ेगी। हो सकता है अगर आप किसी मेंटोर के गाइडेंस में करें तो आपके लिए इसमें बहुत सुविधा हो सकती है। I want to do internship on robotics, so what to do? इंटर्नशिप तभी कर पाएंगे जब आप रोबोटिक्स के अंदर रोबोटिक्स के अंदर कुछ काम कर सकते हैं। इंटर्नशिप की डेफिनेशन मार्केट में गलत करवा रखी है, कई बार हम बोलते हैं कि हम डायरेक्टली रोबोटिक्स की इंटर्नशिप में जाना है, जबकि नॉलेज हमको रहता नहीं। तो हम नॉलेज पहले गैदर करें, पूरा लर्न करें और उसके बाद में इंटर्नशिप के अंदर प्रैक्टिकल चीजों पे काम करें। अगर आपको आता है, नॉलेज है, और अगर आप उसके बाद में इंटर्नशिप पे जाना चाहते हैं तो जो भी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इंदौर के अंदर बहुत सारी, बिठमपुर के अंदर कंपनीज है जो कि जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, शक्ति पंप्स, जो भी अभी अपना बहुत सारा काम ऑटोमेशन की तरफ या रोबोटिक्स की तरफ शिफ्ट कर रही है, तो इनके अंदर आप काम कर सकते हैं। स्टार्टअप कंपनीज के अंदर काम कर सकते हैं। इवन जो बड़ी कंपनी MNCs हैं, चाहे वो बेंगलोर में हो, हैदराबाद में हो, उसके अंदर भी आप काम कर सकते हैं। इंदौर के अंदर आपको हमारी किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो ईडू स्क्वायर ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर के नाम से मेरा कंसल्टेंसी और फर्म है, जिसमें हम लोग बच्चों को इंटर्नशिप देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, तो आप उसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। हेलो, तो थैंक यू वेरी मच। बेस्ट आईडी फॉर रोबोट प्रोग्रामिंग, तो इसके अंदर आर्डिनो पे आप काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आफ्ताब जी, अगर मुझे आगे करना है कंटिन्यू तो आप मुझे बताइए, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे वाइंड अप करूंगा सेशन। हेलो जी जी, कौन पूछ रहे? कुणाल जी। यस सर। Sir, is there any link or site to learn more about robotics?
लिंक और वेबसाइट मैंने आपको बताया। रोबोटिक्स के अंदर जो है आप कोर्सेरा पे और EDX के ऊपर कुछ कोर्सेज को आप मतलब ऑप्ट कर सकते हैं और उसको फिर आप अच्छे से गो थ्रू करें और उसके बाद में आप करें। तो EDX एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म, अगर आपको जानते हो तो उस पर आप काम कीजिए। उसके ऊपर कोई अच्छा कोर्स लेके आप उस पर काम कीजिए, तो आपको इससे पहला कुछ इंटरेस्ट समझ में आएगा कि मैं इस फील्ड में कैसा हूँ, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। और उसके बाद में आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि कोई स्पेसिफिक मेंटोर को अपना मेंटोर बनाएं और उनके साथ में जब काम करेंगे तो आप बहुत सारी चीजों को अच्छे से इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। स्टार्ट विथ आप कुछ YouTube के बहुत अच्छे चैनल्स हैं, उनको भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। यस प्लीज। सोनालिका जी, आप कुछ पूछना चाहें पूछ लीजिए, आपने हैंड रेज किया है। सोनालिका। Okay. Aftab ji, Yes, I am sir. done from my side. Okay. I hope I am able to give a small contribution in terms of the basic understanding of robotics. आपके कुछ आप जैसा आप निर्देशित करेंगे आगे उससे सबसे बड़े। Nikita madam. जी सर, thank you very much sir for sharing your valuable knowledge with us. I hope all the students had a very nice time, very nice session. आप लोगों को जो भी स्टूडेंट्स अगर मुझे रीच आउट करना चाहते हैं तो आप edosquare edosquare@gmail.com पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं, या मेरा फेसबुक पेज है facebook.com/edosquare SQUARE, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप कभी भी वाया जो IPS एकेडमी है, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस, इनके माध्यम से भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा बस निवेदन आप लोगों से रहेगा कि स्टार्ट कीजिए, काम कीजिए। जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक ये सब ख्याली पुलाव होंगे और उस पर कभी काम नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें मेरी किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंडिंग नोट में ये कहना चाहूंगा कि IPS ने इतना इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव एड्रेस करने के लिए सेशन ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए मैं सभी ऑर्गेनाइजिंग टीम, आफ्ताब सर को, मनीष सर को, सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगा कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया और अपने आप को प्रस्तुत करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much sir. Thank you Mudit sir. Thank you very much. Thank you very much Mudit sir for giving your valuable Thank time you, to us. Yes, please. It's been a great session and a great learning for all the participants. Thank you very much. Welcome, please. Should I leave the meeting? Thank you very much, sir. Thanks to all participants. All participants are requested to kindly fill the feedback form. Link will be activated till 1:30 PM only. हाँ, कौन 29431F3 कुछ पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, सो मैं लीव करता हूं अभी। Okay, sir. All the participants are requested to kindly fill the feedback form till 1:30 only. After that, no feedback will be available to fill. And if you fail to fill the feedback form, then you will fail to receive your certificate. Thank you very much. Okay. Thank you, Aftab. Okay. Yeah,